morning and welcome back. So today we are going to start with a new chapter, and the name of this chapter is Understanding Diversity. This is the first chapter of our political science of class 6, and this is a chapter where we can say it is the fundamental chapter of the political. Okay, so what is the meaning of diversity? Okay, diversity का मतलब क्या होता है? For me, diversity means mix, different, or you can say various. Okay, so this is what diversity means. Now we are going to do this chapter with the help of our Indian map, and we are going to see what kind of diversity we have in our country. Okay, so we are going to start with our map, and diversity in terms of, we will see diversity in terms of religion, language, culture, region. So we are going to see that. Now, for example, this is our Indian map. ये क्या है? हमारा इंडिया का मैप है. सबको समझ में आ रहा है? Now, for example, a person staying in Gujarat. ये गुजरात है. So, person staying in Gujarat will speak in Gujarati language. A person staying in West Bengal will speak in Bengali language, and a person staying in Tamil Nadu will speak in Tamil language. Okay, so this is what a different diversity that we see in our country. ये तो हम सिर्फ 3 स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे कंट्री में कितने सारे अलग अलग स्टेट है, और ये सारे स्टेट के लोग जो है अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग है. सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे करके अब हम आपको बताएंगे. नाउ नेक्स्ट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी हियर इज दैट we are first talking about in terms of region. Diversity in terms of region. Okay, now region, we are going to talk about the geographical region. ठीक है, geographical region of India. Now ये हमारा इंडिया है. geographical region में सबसे पहले हम नीचे से देखना स्टार्ट करेंगे, which is south. साउथ से देखना स्टार्ट करेंगे. ये नॉर्थ हमारा, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो साउथ में ये जो एरिया है ना, ये एरिया आता है हमारा कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया आता है. कोस्टल क्यों कहते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे सी है, समुंदर है. यहाँ पे है आपका अरेबियन सी, यहाँ पे है हमारा इंडियन ओशन, और यहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल. ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है. ये सारी चीजें हम करेंगे when we are going to do the map, but still I am telling you we have Arabian Sea in the west, we have Indian Ocean in the down in the south, and then we have Bay of Bengal in the east, eastern part. Okay, so ये जो हमारा कोस्टल बेल्ट है. बीच में आता है हमारा डेक्कन प्लेटो, फिर यहाँ पे आता है हमारा थार डेजर्ट, फिर यहाँ पे आता है हमारा हिमालयन रेंज. ये पूरा हमारा हिमालयन रेंज है. तो ये हम देख रहे हैं, ये पूरा हमारा ज्योग्राफिकल, हमारा फिजिकल फीचर्स भी कह सकते हैं, फिजिकल डिविजन्स भी ऑफ इंडिया कह सकते हैं. तो ये है हमारा पूरा रीजन. अब अलग अलग प्रांत के रहने वाले लोग अलग अलग चीजें करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल स्टेइंग इन हिमालयाज इन द टॉप इन जम्मू एंड कश्मीर obviously will eat different kinds of food and wear different kinds of clothes. क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है जम्मू एंड कश्मीर में, तो पीपल विल वेयर व्हाट? पीपल विल वेयर वूलन क्लोथ्स. पीपल विल ईट such kind of food which will give them warmth, which will keep them warm. People staying in Kerala will definitely wear, because ये साउथ है, यहाँ पे तापमान थोड़ा ज्यादा होता है. It's a hot and humid climate that they have, so they will definitely wear cotton clothes, and they will eat the kind of food which will keep them cool from inside. So ये सारे हमारे region के हम differences देख सकते हैं. What is different? और क्या difference है इनमें? बताओ क्या difference हो सकता है इनमें? Difference, you can say difference in language, difference in clothes, difference in food, फेस्टिवल्स, इनफैक्ट लुक में भी डिफरेंट होते हैं ये सारे. ठीक है, सो ऑब्वियसली पीपल स्टेइंग इन कश्मीर, दे डोंट लुक लाइक पीपल स्टेइंग इन मध्य प्रदेश, राइट? सबके फीचर्स भी अलग होते हैं.
So this is what we are, lays a diversity in our country. We can say this is what the diversity that we can find in a small country like India. बाहर की कोई भी देश से अगर हम अपने देश को कंपेयर करते हैं तो यू कैन सी इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा. Now if you talk about US और if you talk about UK, हमें पता है US के लोग इंग्लिश में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं. कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं अगर पूछे, ओके दे आर US people, they speak in US language. In the UK we will know they also speak in English, British English they speak. बट अगर इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया में पूछते हैं कि इंडिया के लोग कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं, हाँ डोमिनेंट लैंग्वेज हमारा हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी हमारा इंग्लिश हिंदी है, बट स्टिल अगर अलग अलग प्रांत में चले जाएंगे तो अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं होंगी. सो दिस इज व्हाट यू कैन से द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी कम इज रिलीजन. ये हो गया था हमारा रीजन, प्रांत, और ये हो गया रिलीजन. रिलीजन का मतलब क्या होता है? रिलीजन का मतलब होता है धर्म. ठीक है, अलग अलग धर्म. सो इंडिया इज हिंदू डोमिनेटिंग कंट्री. इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हिंदू लोग पाए जाते हैं. लेकिन क्या सिर्फ हिंदू ही रहते हैं? नहीं, उसके अलावा भी हमारे इंडिया में पीपल फॉलो बुद्धिज्म, people follow Sikhism और Jainism और Parsis और इनफैक्ट इस्लाम. ओके, इस्लामिक धर्म फॉलो करने वाले लोग हैं. So we can see in a country where we have so many different regions, where the cultures are different, we have different religion also. For example, Hindu, for us we celebrate Diwali and Holi. For other they will celebrate they will celebrate Eid. Or for Sikh people, Sikhism, they will celebrate Guru Parab. So these are all the difference in religion. Religion के साथ और एक चीज आ जाता है, वो है caste. People here in India believe in different caste also. Caste का मतलब क्या होता है? जाति. ये जाति के भी लोग हैं, मतलब हिंदू धर्म में ही upper caste, lower caste, scheduled caste, then some minority class. ये भी सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे. सो वी विल गो इन डिटेल अबाउट द कास्ट सिस्टम दैट वी फॉलो इन इंडिया. सो उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. बट हम लोग अलग जाति के बारे में भी, सो कास्ट का मतलब होता है जाति, तो हम अलग जाति के बारे में भी, हम लोग में भेदभाव भी होता है और साथ में लोग मिलके भी रहते हैं, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे. नेक्स्ट वी विल कम विद द इंडियन कल्चर. Now, if we say about the culture of the people, now people's culture is changing day by day. Changing मतलब का अर्थ हम यहाँ पे कैसे बताते हैं कि for example, this is Rajasthan. Okay, this is Rajasthan. So, a people staying in Rajasthan moves to Assam. Assam इधर है, असम में मूव कर रहे हैं. तो वो क्या किया? ऑब्वियसली ही इज अ राजस्थानी, सो ही टेक्स ऑल हिज कल्चर्स टू दिस प्लेस. राजस्थानी कल्चर में जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो पूजा करते हैं या फिर जो भी चीजें हम राजस्थान में करते हैं, ये जाके आसाम में सेलिब्रेट किया. ही विल ऑल्सो टेक सम ऑफ हिज फेस्टिवल फ्रॉम आसाम. सो उसने क्या किया? आसाम में वो रहता है, अपना कल्चर भी फॉलो करता है, साथ साथ यहाँ पे भी जो फेस्टिवल होता है वो भी वो साथ में कल्चर फॉलो करता है. सो फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे जगह पे हमें देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू प्लेसेस लाइक मॉडर्न सिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, Chennai, Bangalore, all these places have a mix of culture. पर हम दिल्ली की बात करें, ये क्या है? दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है. तो अगर इसकी बात करें, इसमें तो बहुत सारे ना people from all the parts of the country, they coming and settling down to Delhi. Now some Tamilian is settling down to Delhi, some Gujarati is settling down to Delhi,
कोई महाराष्ट्र से आता है, तो कोई अरुणाचल प्रदेश से आता है, तो कोई झारखंड से आता है, और सारे दिल्ली में आके सेटल होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। अब सोचो उनमें कितने सारे डिफरेंसेस होंगे, मिक्स ऑफ कल्चर हो गया, ये कुछ अलग सेलिब्रेट कर रहा है, ये कुछ अलग सेलिब्रेट करता है। सो देखो इतना डाइवर्सिफाइड जो चीजें हम दिखा रहे हैं, डिफरेंट अलग अलग कल्चर की चीजें आके यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इन योर एनसीईआरटी बुक, द एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक इज द डिफरेंट इन कल्चर्स ऑफ 2 डिफरेंट स्टेट के बारे में बताया गया है। वन इज केरला, ये क्या है, केरला, एंड ऑफ लद्दाख, दिस इज लद्दाख। ओके, सो ये दोनों जगह के बारे में बहुत चीजें बताई गई है। अब अगर हम बात करें लद्दाख और केरला की, तो केरला कहाँ है, एक्सट्रीम नॉर्थ में, और केरला कहाँ है, साउथ में। ठीक है, लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख इज अ प्लेस where you will find the Himalayas and the mountains. It is full with mountains. Obviously, if it is mountain, there the climate is very cold, and it's a border of China. ये चाइना का बॉर्डर आता है हमारा, ठीक है, ये चाइना है। सो बहुत सारे टिबेटियन कल्चर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, लोगों के फीचर्स डिफरेंट है। Okay, so all these are a different thing that we see in Ladakh, and if we compare to Kerala. Okay, so हम क्या बता रहे थे, हम लद्दाख के बारे में बता रहे थे। So we are talking about Ladakh. The people stay here mostly depend on meat and milk, because they mostly get that kind of food. The animals that they get is sheep, goat, and yak. So they depend on their milk, and from there they get the meat. And another thing is wool industry. Due to sheep, there are wool industries, a lot of wool industries there. क्योंकि वहाँ के लोग जो है हमेशा वार्म कपड़े पहनते हैं, इसी वजह से वो wool, बहुत बड़े बड़े wool industry वहाँ पे, कारपेट इंडस्ट्री है। Then you will find पश्मीना शॉल जो काफी ज्यादा वार्म होता है, and some dry fruits like walnuts and apricots are also we can find there. Dry fruits keep them warm from inside. So ये सारी चीजें हम लद्दाख में देखने को मिलेगा। वही अगर बिल्कुल हम दूसरी तरफ केरला पे चले जाते हैं, तो केरला में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पे गर्मी एंड ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई दे वेयर अ लॉट ऑफ कॉटन क्लोथ्स। वहां का मेन बिजनेस जो है वो होता है फिशिंग। सो पीपल ईट अ लॉट ऑफ फिश एंड राइस। तो यहाँ के हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस क्या देखा, तो यहाँ के जो लोग हैं ये ज्यादातर राइस खाने वाले लोग होंगे, एंड यहाँ के जो लोग हैं ये जनरली मीट एंड मिल्क के ऊपर डिपेंड करेंगे। और अगर नॉर्थ इंडिया की भी बात करें, सो दे विल मोस्टली डिपेंड ऑन व्हीट, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द वेदर। ओके, वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो ऑल दिस दैट वी कैन सी। और केरला के बारे में और अगर हम बात करें तो बहुत पहले की हिस्ट्री की बात है, जो अरबियन सोल्जर्स यहाँ से आते थे वो सी रूट पकड़ के केरला में आते थे। केरला में आने के बाद उन लोगों ने देखा देयर आर लॉट ऑफ स्पाइसेस, जो यहाँ से वो ट्रेडिंग करके, मतलब व्यापार करके लेके जाते थे अपने देश में। तो इसी वजह से केरला वॉज अ मेन हब ऑफ स्पाइस। नाउ यू कैन गेट कार्डमम, सिनेमम, देन पेपर, जिसको हम काली मिर्च कहते हैं। ऐसे सारी जो चीजें हैं ये केरला में बहुत ज्यादा फेमस है। इट इज इक्वली फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स। सो ये हम लोगों ने देखा कि अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। भले एक हम कह सकते हैं, भले ब्रिटिशर्स ने आके हमें बहुत सारी चीजों से हमें रोकने की कोशिश की, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाया, जहां पे वो चाहते थे कि इंडिया को छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों से बांट दे। लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उन्होंने ये चीज कही थी। ठीक है,
इसका मतलब है इतने सारे डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बट फिर भी हमारे में एकता है। ओके, एकता में ही हमारा एक्चुअल बल है, जिसको कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हमको एक कर दो तो हम उठ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमें टुकड़ों में बांट दो तो हम खत्म हो जाएंगे। सो ये सारी चीजें, बहुत सारे पोएम्स है रविंद्रनाथ टैगोर का, फिर जिसमें बताया है स्पेशली हमारा जलियनवाला बाग मैसेकर जब हुआ था, जहां पे सब लोगों को एक साथ मार दिया गया था, शूट कर दिया गया था, शूटिंग फायर शूट करने की वजह से वो मर गए थे, सारे थे वहां पे। तो उसकी वजह से कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई अलग नहीं थे, सभी अपना जान बचाने के लिए एक कुएं में उन लोगों ने जंप कर दिया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे महान लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारी ये कास्ट सिस्टम और हमारे डाइवर्सिटी को बताने के लिए, ताकि भेदभाव ना हो, इन सब के लिए उन लोगों ने बहुत सारा काम किया था हमारे इंडिया के लिए। So, whatever the thing is, being so much diversified country, but still we are one. हम एक ही कंट्री के रहने वाले हैं, एक ही कंट्री में बसने वाले हैं। So this is what is diversity. I hope you understand this chapter, and I'm sure you will understand this chapter. You will go through the Indian culture, Indian map. So there are different things that I have told you about our Indian diversity. From east to west to north to south, we have different diversity, but still we are one as Indian. हम लोग एक है, एक इंडियन जैसे ही हम सब साथ में लेके चलते हैं। So I hope you like this, and we will talk about our next topic, which will be diversity in discrimination. So we will talk about more detailedly how diversity become discrimination day by day. So if you like it, please subscribe and like my channel, and till then, thank you and have a great day.